નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કેબીસી ન્યૂઝ। આજે આપણે વાત કરીએ આજના તાજા સમાચારની। ભાવનગર આંબા ચોક ખોજાવાડમાં ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિ સલામની શહાદત મનાવાઈ। આજરોજ ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિ સલામનો શહાદતનો દિવસ હોય। ગત રાતે શહાદતની રાત હોય। રાત્રે જનાબના મકાનમાં ઇમામ સાદિક અલૈહિ સલામની શહાદતનો શોક મનાવાયા। શિયા મુસ્લિમો ઇમામવાડા હોલમાં કાળા કપડાં પહેરી મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા। આ પ્રસંગે દિલ્હીના શિયા જામા મસ્જિદ પેશ ઇમામ સૈયદ મોહસિન સાહેબ પધારેલ। ઇમામ સાહેબે જાફરે સાદિક અલૈહિ સલામના જીવન વિશે ઐતિહાસિક સમજણ આપેલ। જાફરે સાદિક અલૈહિ સલામે આજથી 1400 વર્ષ પહેલા આલમે ઇન્સાનિયતમાં ઇસ્લામ અને ઇન્સાનિયતની ખિદમત સેવાનો સંદેશો દુનિયામાં ફેલાવવા માટે એક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરેલ, જેમાં ઇન્સાનિયતના ઉચ્ચ મૂલ્ય, ગરીબોની સેવા, યતીમોની દેખભાળ, માનવજાતના વિકાસમાં ઉચ્ચ આદર્શોની તાલીમ આપવામાં આવતી હતી। વિશ્વભરમાં તેમના અનુયાયીઓ આજે પણ માનવ સેવા કરી ઇસ્લામનું માનવતાવાદી પ્લેટફોર્મ આજે પણ સિતારાઓની જેમ દુનિયામાં ઝગમગી રહ્યું છે। પૈગંબર સાહેબના આ પુત્રને ઇન્સાનિયતના દુશ્મન બાદશાહે ઝહેર આપી શહીદ કરી નાખ્યા હતા। તેમની આ શહાદતની યાદમાં મજલિસે હુસૈન કરી અને તેમાં પધારેલ તમામ લોકોએ તેમની યાદમાં નૌહા માતમ કરી શહાદત મનાવી હતી। ત્યારબાદ આવેલ તમામ માતમદારોએ સમૂહ ભોજન કરાવી ચા પાણીની વ્યવસ્થા કમિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે કેબીસી ન્યૂઝના અમારા પ્રતિનિધિએ સૈયદ મોહસિન સાહેબની મુલાકાત લઈ ઇસ્લામના માનવજાતના પૈગામ વિશે ચર્ચા કરી હતી। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામ માનવજાતના ખિદમતના મહાન સિતારા હતા અને તેમની કબરે મુબારક મદીનામાં જન્નતુલ બકીમાં આવેલ છે। તેમની શાનદાર મજા પર સાઉદી સરકારે તોપ મારી બિસ્માર કરી નાખેલ છે, તે આજે પણ તસવીરમાં જોઈ શકાય છે। સંવાદદાતા મુસ્તાકભાઈ મેઘાણી સાથે કેમેરામેન મુર્તુજાએ જમાણી, કેબીસી ન્યૂઝ, ભાવનગર। આજે ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામની શહાદતની રાત, એટલે કે મુસલમાનોના ઇમામ અને શિયાઓના છઠ્ઠા ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામની શહાદતની રાત હોય અને આ શહાદતને દિવસે આજે મૌલાના મોહસિન સાહેબની મુલાકાત લેશું અને ઇસ્લામ દુનિયાને શું પૈગામ આપે છે એ આપણે જાણીશું। કેબીસી ન્યૂઝમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। केबीसी न्यूज़ मुश्ताक भाई मेघा। आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम मोहसिन तकावी, मैं दिल्ली से हाजिर हुआ हूँ। दिल्ली में शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट पर वहाँ इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ और इसके अलावा जामियातुल शहीद नाम से एक मदरसा वहाँ है दिल्ली में, जिसका एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैं वहाँ देख रहा हूँ। આજે ઇમામે જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામની શહાદતની રાત છે, તો એ બારામાં આપ થોડોક પ્રકાશ પાડશો અને ઇમામ દુનિયાને શું પૈગામ આપવા ચાહે છે? देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दुनिया को देना चाहा है और कामयाब अंदाज के अंदर इमाम ने पैगाम दिया है, वो यही कि अहले बैत अलैहिस्सलाम वो अजीम शख्सियतें हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर हर कुर्बानी देना कबूल की है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तमाम तर जद्दोजहद इस्लाम ही की खातिर थी। और इमाम ने जिस तरह से अपने दर्स में तमाम फ़िरक़े और तमाम ग्रोह जो उस वक्त पाए जाते थे सभी को एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा करके आपने दर्स दिया है, वो पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए एक वहदत का दर्स है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इमाम ने दोबारा एक मरतबा फिर ज़िंदा किया है। और इमाम का यही कारनामा जो है वो हमें इस बात के ऊपर मजबूर करता है कि हम इमाम की ज़िंदगी के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और उनके नक्श कदम के ऊपर चलने की कोशिश करें। देखिए, इमाम ने जो दर्स दिया है आलम इंसानियत को, वो जिस तरह से लोग उस वक्त एक दूसरे से उलझ रहे थे, एक दूसरे से बरसरे पैकार थे,
इमाम ने दुनिया को रैशनल होने का यानी अक़ली और इस्तदलाली गुफ्तगू करने का हुनर सिखाया और तमाम इख्तलाफात को अक़ल के ज़रिए से हल करने की बात जो है इमाम ने कही। और जिस तरह से लोग एक दूसरे की मुखालफत और दहशतगर्दी और एक दूसरे की साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक वाला तर्ज़ अमल इख्तियार किए हुए थे, इमाम ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई और इस चीज़ को जो है दुनिया के सामने पेश किया कि मेल मोहब्बत और आपसी भाईचारे और एक दूसरे के जज्बात की कदर और एक दूसरे का एहतराम जो है वो मद्देनज़र अगर रखा जाए तो इस्लाम सही माना में जो है वही इस्लाम है और उसी की हमें पैरवी करनी चाहिए। ये इमाम की तालीमात का निचोड़ है कि जो इमाम ने पूरी आलम इंसानियत को दर्स दिया है। वाक़ई अगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी अगर न होती तो जिस तरह से उस वक्त बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे और एक दूसरे के खून के प्यासे थे और जिस तरह से आपस में बहुत से फ़िरक़े उस वक्त एक दूसरे से उलझे हुए थे, वो आपस में अगर उलझते रहते तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल से बचाने के लिए कोई दूसरी ज़ात शायद इतनी मौसर साबित न होती जितनी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस अमन व शांति और आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी का रवैये की जो बुनियाद डाली है वो इमाम ही का अजीम कारनामा है। देखिए ये चीज़ के इमाम के पैगाम के अंदर जो हमें सबसे नुमायाँ हो के नज़र आती है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया भी है कि इमाम एक रैशनल और एक अक़ली चीज़ जो है वो मुसलमानों के दरमियान राइज हो, ये इमाम चाहते थे। और दूसरे हर मज़हब के एतक़ादात और उनके जो भी तौर तरीक़े हैं उसे हम मलामत और यानी अपनी तंग नज़री का सबूत देते हुए उसके लिए रेस्पेक्ट का अगर इजहार न करें तो ये चीज़ इमाम नापसंद फरमाते थे। लिहाजा इमाम के सामने दहरिए भी आते थे, यानी वो जो दीन के मुनकिर हैं, खुदा के मुनकिर हैं, वो भी आते थे और इमाम उनसे भी जो है वो अदब के दायरे में और अखलाकियात के दायरे में गुफ्तगू करते थे। और इमाम ने किसी के ऊपर जो है इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह की तोहमतें नहीं लगाई हैं कि जिनसे नारवा तोहमत या बदज़बानी या बदअखलाक़ी जो है वो तस्वुर किया जाए, बल्कि इसके बरक्स जो है इमाम अखलाकियात की आला तरीन तालीमात जो है वो हमें दुनिया को देते हुए नज़र आए हैं। तमाम फ़िरक़ों के दरमियान, तमाम लोगों के दरमियान, तमाम मज़ाहिब के दरमियान जो है आपसी भाईचारा इस सूरत में अगर हो कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं की, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें और अगर आपस में कोई थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो भी तो उसे गुफ्तगू के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से आपस में एक दूसरे की बात को समझते हुए और सुनते हुए जो है वो हल किया जाए। यही इमाम ने जो है वो दर्स दिया है। आज के दौर में जो हालात हमारे सामने हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर हम गौर करें तो हमें आज के तमाम मसाइल का हल जो है इमाम की ज़िंदगी के अंदर मिल जाएगा। इमाम किसी से लड़ते हुए नज़र नहीं आते, इमाम किसी के साथ बदज़बानी करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि हर एक का एहतराम और हर एक की जो है वो उसके साथ मोहब्बत का सलूक जो है वो इमाम की गुफ्तगू के अंदर हमें नज़र आता है। शुक्रिया जनाब KBC न्यूज़ मुश्ताक भाई मेघानी तरफ से। KBC न्यूज़ आपका खूब खूब शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़।